ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ। ગયા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ જોયો હતો। આજે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું। એમાં પ્રશ્ન 1 છે, નીચે दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ऐसा क्यों कहा। હવે જો પહેલો પ્રશ્ન છે, सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या कहा और क्यों। मेरे पास 40 रुपया है, ऐसा लड़के ने क्यों कहा। तो एनो आंसर आवशे, लड़के से उसकी माँ ने कहा था। सरदार ने क्या पूछा था लड़के को, तो सरदार ने लड़के को पूछा था और लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 रुपया है। ऐसा क्यों कहा लड़के ने, तो सांभळो, लड़के ने उसकी माँ ने कहा था, એટલે કે જે છોકરો હતો તેની માએ તેને કહ્યું હતું કે બેટા સदैव સચ બોલના झूठ બોલના પાપ હે। એટલે એની માં હતી, એના માતા હતા, તેણે શું કીધું હતું કે બેટા હંમેશા સાચું બોલજે, કારણ કે ખોટું બોલવું એ પાપ છે। લડકે ને ઉસકી માં કી सीख मान ली थी, અને તે છોકરાએ તેના મમ્મીએ જે એને શીખ આપી હતી તે માની લીધી હતી। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, અને તે પોતાની માને ધોખો આપવા માંગતો હતો ને દગો આપવા માંગતો નહોતો। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया, અને એટલા માટે સરદારે જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે છોકરાએ સીધે સીધું કહી દીધું કે मेरे पास 40 रुपया है, કે મારી પાસે 40 સોના મહોરો છે। क्वेश्चन नंबर 2 છે, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो, ऐसा क्यों कहा। तो के एनो आंसर आवशे, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 रुपया है। એટલે કે છોકરાએ પોતાની માની શીખ માની અને તે મુજબ ડાકુઓને સીધે સીધું ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધું હતું કે મારી પાસે 40 रुपया એટલે કે સોના મહોરો છે। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। છોકરાની ઈમાનદારી જોઈ અને સરદાર હતા તે પ્રભાવિત થઈ ગયા અને તેણે લૂંટફાટથી નફરત થઈ ગઈ। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो, અને એટલા માટે ડાકુઓનો જે સરદાર હતો તેણે ડાકુઓને કહ્યું કે જે લૂંટફાટ કરેલો સામાન છે તે બધાને પાછો આપી દો। ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, પઢીએ और अपनी कॉपी में लिखिए। વાંચો અને તમારી બુકમાં લખવાનું છે। એમાં ફર્સ્ટ છે લડકા, मेरे पास 40 रुपया है। सेकंड છે आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। थर्ड છે माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। फोर्थ છે हमेशा सत्य की ही जीत होती है। फिफ्थ છે हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते, तो एनो आंसर आवशे, अब्दुल कादिर की जगह पे मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकू को दे देता। એટલે કે જો હું અબ્દુલ કાદિરની જગ્યા પર હોત તો હું પણ સાચું બોલી અને અશરફિયા જે મારી પાસે હોત તે હું ડાકુઓને આપી દેત। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटे होते हुए भी सच बोलता हूँ, और एक आँख है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। એટલે કે જો હું અશરફી આપી દેતા ને હું ડાકુઓને કહે કે હું આટલો નાનો છું તો તેમ છતાં પણ હું સાચું બોલું છું, તો તમે ભગવાને બતાવેલો જે ઈમાનદારીનો રસ્તો છે તેના પર તમે કેમ નથી ચાલતા અને આવી રીતે બેઈમાનીની કમાઈ છે તે કેમ ખાવ છો। સમજાયું। ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, પઢીએ સમજીએ और अपनी कॉपी में लिखिए। વાંચો, સમજો અને પછી તમારી બુકમાં લખવાનું છે। माँ तो बाप, सेकंड છે बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर।
क्वेश्चन नंबर 5 છે सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक समयની વાત છે, એક લંબા કાફિલા બગદાદ की ओर जा रहा था। एक मोटो काफलो तो તે બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। રસ્તામાં એના પર ડાકુઓ તૂટી પડ્યા અને લૂંટફાટ કરવા લાગ્યા। उस काफिले में एक 9 वर्ष का एक बालक था। એટલે કે એક કાફલામાં એક 9 વર્ષનો છોકરો પણ હતો। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर लूटमार देख रहा था। અને તે એક બાજુ ઊભો હતો અને આ લૂંટમાર થતી હતી તે જોઈ રહ્યો હતો। એક डाकू ने उस लड़के को देखा और उससे भी पूछा। એટલે કે એક ડાકુએ તે છોકરાને જોયો અને તેને પૂછ્યું। लड़का सच बोला। એટલે કે છોકરો સાચું બોલ્યો કે उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। એટલે કે તેણે પોતાની સદરીમાંથી જે અસ્તર હતું તે ફાડી અને એમાંથી જે 40 સોના મહોરો હતો તે સોના મહોરો डाकुओं आपी दीदी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपने अशरफिया छुपाई क्यों नहीं। એટલે કે આટલો નાનો બાળક છે છતાં પણ તેણે પોતાની જે સોના મહોરો છે તે શા માટે છુપાવી નહીં। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। એટલે કે જ્યારે છોકરાને પૂછવામાં આવ્યું કે તે આવું કેમ કર્યું તો છોકરાએ શું જવાબ આપ્યો કે તેણે પોતાની માએ જે સાચું બોલવાની શીખ આપી હતી તેને તે માનતો હતો એટલા માટે। वह ऐसी मुसीबत के समय भी माँ के साथ गद्दारी करना चाहता नहीं था। એટલે કે આટલો મુશ્કેલીનો સમય હતો છતાં પણ તે પોતાની માતા સાથે દગો કરવા માંગતો હતો નહીં। इसलिए वह सच बोला। અને એટલા માટે તે સાચું બોલ્યો। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया और उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। એટલે કે આટલો નાનો છોકરો હોવા છતાં પણ જો પોતાને માતાએ જે શીખ આપી હતી તેના પર અડગ રહેતો હતો એ જોઈને ડાકુ અને એના સરદારનું દિલ એકદમ પરિવર્તિત થઈ ગયું અને તેઓએ લૂંટેલો જે માલ સામાન હતો તે પાછો આપી દીધો અને ઈમાનદારીના રસ્તા ઉપર ચાલવાની પ્રતિજ્ઞા કરી। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। અને સાચું બોલવાવાળો તે છોકરો અબ્દુલ કાદિર હતો। મોટો થઈને તે એક મહાન સંત બન્યો અને તેની સમાધિ બગદાદમાં છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં દર્શન કરવા માટે આવે છે। સમજાયું। क्वेश्चन नंबर 6 जो पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011। बड़ोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। बड़ोदरा उत्सव प्रिय नगरी बड़ोदरा में गणेशोत्सव के कुछ दिन शेष होने से शहर में छोटे मोटे युवक मंडल द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित तालफड़िया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। समझायो तमने पेरेग्राफ वाँचो है। चालो आपणे प्रश्न पूछा एना जवाब आपवाना छे। तो क्वेश्चन नंबर 1 छे अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। तो अखबार में छपे
समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। समझाયું? चलो सेकंड क्वेश्चन जो समाचार की हेडलाइन पढ़िए એટલે કે તમારે સમાચારની હેડલાઇન વાંચવાની છે। ત્રીજું છે समाचार किसके बारे में है तो એનો આન્સર આવશે समाचार बड़ोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फीट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 છે समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर दीजिए। एमा अ छे ये किस शहर के समाचार है तो ये बड़ोदरा शहर के समाचार है। ब छे कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवल मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। समझाયું? ચાલો પછીનો જો क्वेश्चन नंबर 3 એટલે ચોથાનો ત્રીજો गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया गया है तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया गया है। ड छे प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। नगर तो फकरामांथी गोतवानुं छे शहर। सेकंड छे बड़ी तो विशालकाय। त्रीजું गणपति तो गणेश। चौथું खास तो विशेष। पांचमुं अतिथि तो मेहमान। छठું मूर्ति तो प्रतिमा। समझाયું? ચાલો આગળનું છે તે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું।